یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں تمام حاضرین کو اور تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام قبول ہو۔ میں ہوں ڈائریکٹ ٹی وی کا چیئرمین پاسٹر مشتاق چنا۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور زیادہ لوگوں تک بھی خدا کا کلام پہنچ سکے۔ یہ دوسرا میسج آج ہم سننے والے ہیں دینے کے تعلق سے۔ پچھلے سنڈے ہم نے پرانے اور نئے عہد نامہ میں سے 2 حوالہ جات جو ہیں ان کو پڑھا اور سنا، اور اس میں ہم نے سیکھا کہ لوگوں نے اپنی پوری خوشی کے ساتھ خدا کے گھر کے لیے، خدا کے کام کے لیے دل کھول کر لوگوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا، سونا، چاندی، پیتل، لوہا، ہیرے، موتی، جواہرات، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے دل کھول کر خداوند کے کام کے لیے دیا، اور خدا کا کام جو ہے اس کے لیے بہت کچھ جمع ہو گیا۔ اور آج ہم پرانے عہد نامے میں سے خدا کے زندگی بخش کلام کو پڑھیں گے۔ خروج کی کتاب 30واں باب میرے ساتھ نکال لیجیے۔ اور آج اسپیشل آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانے والا ہوں کہ جتنے بھی لوگ 20 سال کے ہو جاتے ہیں، چونکہ 14 سال کی ایج میں آج کل بچے جو ہیں وہ میٹرک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 3، 4، 5 سال کی بھی ٹریننگ کریں تو وہ اس کے بعد 20 سال کے ہو جاتے ہیں۔ تو 20 سال کے بعد وہ پیسے کمانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا نے یہاں پر موسیٰ کو ایک قانون دیا، ایک اصول دیا، ایک آئین دیا۔ میرے ساتھ ذرا اس کو سیکھیے گا، بہت ہی خاص بات ہے۔ یہ خروج کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 12ویں آیت ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ کس نے کہا ہے؟ کہا کس نے ہے؟ خداوند نے کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ موسیٰ کو کہا ہے۔ موسیٰ نے اپنے پاس سے یہ میسج نہیں دیا، بلکہ خدا نے یہ میسج موسیٰ کو دیا ہے۔ جیسے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ وہ بات جو مجھے خداوند سے پہنچی وہ میں نے تم تک بھی پہنچا دی، اسی طرح یہ بات خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو دی ہے۔ اور لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے۔ مردم شماری کے تعلق سے سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر 5 سال کے بعد مردم شماری کی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے جوان ہیں، کتنے بچے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کی کیا حاضری ہے، کیا شمار ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ اسی طرح خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ یہ کلام کیا کہ تو کیا کر، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے، یعنی جب تو ان کی مردم شماری کرے، جب تیرے پاس رجسٹر ہو تو ان کا نام اپنے رجسٹر پر چڑھائے، اپنے کھاتے پر لکھے۔ تو لکھا ہے جتنوں کا شمار ہوا ہو وہ فی مرد، یعنی ہر مرد کی بات ہے۔ جب بندہ 20 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ مرد بن جاتا ہے۔ ہاللیلویا، وہ مرد بن جاتا ہے، وہ آدمی بن جاتا ہے۔ اور لکھا ہر فی مرد جو ہے شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ دے۔ ہر مرد اپنی جان کا فدیہ دے۔ پرانے عہد نامے میں ہر مرد، ہر عورت اپنی جان کا فدیہ دیتے تھے۔ جو کچھ بھی خدا نے ان کو دیا ہوتا تھا، مال و متاع، زمین، جانور، اور جو کچھ بھی مالی طور پر یا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر خدا نے ان کو دیا ہوتا تھا، ہر ایک شخص اس کے عوض فدیہ دیتا تھا، اس کا افزانہ جو ہے وہ دیتا تھا، خدا کو لٹاتا تھا۔ پچھلے سنڈے ہم نے سیکھا کہ لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہم نے اس میں سے تھوڑا سا تجھے واپس کر دیا۔ تو ہم نے کیا احسان کیا، تاکہ جب تو اس کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے۔ ہر ایک جو نکل کر شمار کیے ہوئے ہو میں ملتا جائے وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے۔ مسکال کا آج آپ کو مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں ہم 1000 کو ایک مسکال سمجھ سکتے ہیں، یا 100 روپے کو ایک مسکال سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا
निसफ हिस्सा यानी उसका नीम मुस्काल हिस्सा, इसका क्या मतलब है कि उसका आधा हिस्सा जो है वो आपने खुदा के लिए देना है। आज आपको बताना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर एक बंदा 20,000 कमाता है तो 20,000 में से 2,000 रुपया दाई की निकल जाती है, और दाई की जो है उसके तल्लुक से भी खुदा का कलाम कहता है आप खुदा के घर में लाएं। और पुराने अहदनामे में अगर आप पढ़ें तो दाई की जो है वो कहन के लिए मुकर्रर की जाती थी। और यहां पर लिखा हुआ है जी 14वीं आयत में लिखा है, और जितने 20 वर्ष के या इससे ज्यादा उम्र के निकल कर शुमार किए हुए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे। 20 साल का यहां पर जिक्र है, 20 साल से ऊपर जितने भी लोग मिलते जाएं उस शुमार में, मर्दम शुमारी में वो सब लोग जो हैं वो अपना अपना फिदिया दे। यानी 20,000 में से 2,000 रुपया दाई की निकलती है, और पीछे कितना रह गया 18,000, और 18,000 में से आप आधा जो है वो खुदा के घर के लिए दे। ये खुदा के कलाम की तालीम है, हम इसको माने या ना माने। आज तो बड़ी मुश्किल से लोग दाई की देते हैं, बल्कि वो भी बहुत से लोग नहीं देते, लेकिन ये कलाम की तालीम आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से यानी अगर आप खुदा के साथ चलना चाहें तो ये असूल है, ये तरीकाकार है खुदा के साथ चलने का, खुदा को देने का। अब 2,000 रुपये दाई की निकल के पीछे 18,000 रुपया बचा, फिर उसमें से 9,000 खुदा के काम के लिए निकल गया, बाकी कितना बचा 9,000 आपको बचता है जी। लेकिन आज हम यहाँ पर सीखेंगे, बहुत से गरीब लोग जो होते हैं वो कहते हैं हम खुदा को नहीं दे सकते क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम आगे लिखता है, फरमाता है कि जो गरीब है वो भी उससे काम ना दे और जो अमीर है वो भी काम ना दे, यानी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आगे लिखा हुआ है 15वीं आयत में, जब तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद की नजर दी जाए तो दौलतमंद नीम मस्काल से ज्यादा ना दे और ना गरीब उससे कम दे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, लेकिन जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। नए एहदनामे में एक औरत थी जिसके पास 2 दमड़ियां थी, उसने वो दोनों खुदा के लिए दे दी, खुदा के घर में दी, और यीशु मसीह ने सबके सामने कहा इस औरत ने सबसे ज्यादा दिया, हालांकि उसने सबसे कम दिया था। बहुत सारे दौलतमंद आए थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने इस औरत की तारीफ की कि जो कुछ इसके पास था उसने वो दे दिया। तो यहाँ पर गरीब के तलक से लिखा हुआ कि नहीं, अगर गरीब के पास थोड़ा है तो उसमें से भी वो थोड़े से थोड़ा निकालकर खुदावंद के लिए दे, तो फिर क्या होगा। इंसान की किताब में लिखा है कोई तो खुले दिल से खर्च करता है फिर भी दौलतमंद है, और कोई वाजिबी खर्च से भी दरेर करता है, यदि जहां पर पैसा खर्च करना चाहिए उससे भी दरेर करता है, कंजूसी करता है कि ना ही खर्च हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी वो गरीब है, फिर भी वो कंगाल है। वजह क्या है? क्योंकि जो खुदा के लोग हैं वो खुदा को देते हैं, खुदा उनको और देता है, और जो खुदा को नहीं देते फिर वो गरीब रहते हैं, और जहां पर वाजिबी खर्च होता है उससे भी वो ग्रेस करते हैं। सो आगे लिखा हुआ है और तू बनी इस्राएल से कफारे की नकदी लेकर, यानी नकद पैसे लेकर उसे खैमा इत्तमा के काम में लगाना, यानी हैकल में लगाना। खैमा जो तू बनाने वाला है उसके लिए नकदी लेकर, नकदी पैसे लेकर तू खैमा इत्तमा पर लगाना, ताकि वो बनी इस्राएल की तरफ से तुम्हारी जानों की कफारा के लिए खुदावंद के हुजूर यादगार हो। खुदा आपके दिए हुए को याद करके फिर आपको वापस लुटाएगा, और जब आप देंगे नहीं तो फिर खुदा कैसे आपको देगा? नहीं ना देगा। खुदा भी तब याद करेगा जब आप खुदा को याद करेंगे। जब आप खुदा को याद नहीं करेंगे, आप खुदा को भूल जाएंगे, तो फिर खुदा भी आपको भूल जाएगा इस काम में। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है खुदावंद को देना। जी मेरे साथ एक और हवाला जल्दी से निकाल लें, क्योंकि आज हम जल्दी मीटिंग को वाइंड अप कर रहे हैं, पाकिशा की मीटिंग है। मेरे साथ मलाकी की किताब निकाल लें, ये बस आखिरी वाला है। और अब हम सीखेंगे कि वो लोग जो दाई की नहीं देते वो क्या हैं। जो लोग दाई की नहीं देते वो क्या हैं, खुदा का कलाम क्या बताता है। 7वीं आयत से पढ़ेंगे, तीसरा बाब है 7वीं आयत।
तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिया में पास तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी, कितनी दायकी जी? आज हम देखते हैं कि कई लोग बाहर गए हुए 1-1 लाख रुपया उनकी तनख्वाह है और वो कभी कभार 500 या 1000 रुपया देते हैं। बड़ा क्या है, हम वो हदिया देते हैं, दायकी नहीं देते। दायकी का मतलब है 10वां हिस्सा। यानी मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? यानी 1 लाख रुपया आपकी तनख्वाह है तो आपने 10,000 खुदावंद के लिए देना है। अगर 2 है तो फिर आपने 20 देना, ऐसे ही ना। लेकिन ये खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि पूरी दायकी ज़खीरा खाना में लो ताकि मेरे घर में खुराक हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी दायकी हम देते हैं। किनको देते हैं? बेवा को दे देते हैं, यतीमों को दे देते हैं, गरीबों को दे देते हैं। लेकिन कलामों में यहाँ पर क्या बता रहा है? दायकी देने का सूल खुदा ने पुराने अहद में बनाया था। इस्राएल के 12 कबीले थे और एक कबीला जो लावी का कबीला था, उसमें से कहन चुने जाते थे और खुदा ने सूल बनाए थे 11 कबीले जो है 12वें कबीलों को अपनी पूरी दायकी देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करना, मेरी खिदमत करनी है ताकि उनकी जरूरियात पूरी हो सके, खुदा के घर की जरूरियात जो है वो पूरी हो सके। इसलिए खुदा ने ये कानून मुकर्रर किया है, ठीक है? और यहां पर लिखा हुआ है पूरी दायकी ज़खीरा खाना में लो ताकि मेरे घर में खुदा को, और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ या कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, यानी नुकसान को डांटूंगा, और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा ना झड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिल की शाह मुमलकत होगे। रब्बुल फाज फरमाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बता रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि दायकी जो है वो यतीमों को, बेवा को, गरीबों को देनी चाहिए। दायकी जो है वो आपने चर्च में लाकर देनी है, और इससे हटकर अगर आप किसी गरीब की, किसी यतीम की, किसी बेवा की मदद करना चाहते हैं तो इससे हटकर करें। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर जो अमीर तरीन बंदा है बिल गेट है, और वो क्रिश्चियन है। उसने दायकी से काम शुरू किया था, जिसकी आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और पोलियो के कतरे भी वही देता है, और भी बहुत सारे कामों में वो अपना पैसा देता है। उसने दायकी देने से काम शुरू किया था और आज वो पता कितना देता है आपको? पता आपको? 95% देता है। यानी अगर वो 100 रुपया एक दिन कमाता है तो वो 95 रुपये खुदा को देता, 5 रुपए रखता, फिर भी दुनिया का अमीर तीन आदमी है। एक दफा ऐसे हुआ कि एक बाहर से गोरा आया तो उसने ऐलान किया कि जो भी कोई अमीर होना चाहता है वो चर्च में आए। तो बहुत से लोग सारे जड़े कभी नहीं सी आए, जिन्हें हुणे आप ऐलान कर दिया कि चर्च में राशन तकसीम हो रहा है, पादरी मुशाक नु बाहरों एड आ गई है, लो जी पूरा 33 चक इतने ना आवे तो क्यों? वजह क्या है? अब कुछ मिलना वहां से। और ऐसा हुआ कि उस पास्टर ने ये कलाम सुना है कि अगर कोई अमीर होना चाहता है तो वो पूरी दायकी दे। लोग नाली चले हो गए, ये तो साढ़े पादरी भी सुना रहे हैं। असी तो सोचा ही बाहरों आया, पता नहीं साढ़े लिए की लैक आए जेडे असी दौलतमंद हो जाना। उसने कहा अगर आप दायकी देंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, और ये हम अमीर होने का तरीका कार है, और ये कलाम की तालीम है। देना लेने से मुबारक है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुदा खुशी के साथ देने वालों को जीत रखता है, और तब ही तुम्हें हर किस्म की चीज अफराद के साथ मिलेगी, बहुतात के साथ, कसरत के साथ मिलेगी, ताकि हर अच्छे और नेक काम के लिए तुम्हारे पास देने के लिए हर वक्त मौजूद रहा करे। और पौलुस ऐसे नहीं कलीसिया को कहा करता, कहता है मेरे आने से पहले चंदे जमा करके रखा करो ताकि चंदे जमा करने ना पड़े। किसी न किसी जगह पर उसको जमा करके रखा करो ताकि मैं आऊं तो तुम्हें जमा ना करने पड़े, तुम्हें इधर उधर ना देखना पड़े। आज यहां से मैं आपको 6 बातें सिखाऊंगा। नंबर 1, जो दायकी नहीं देता वो ठग है। वो क्या है जी?
हूं तो बोलती बंद होगी। नंबर एक जो दाई की नहीं देता वो क्या है? कोई भी नहीं सुनना चाहता कि मैनू कोई ठग कह दे, क्योंकि पिंड च ठग भी है, पता नहीं उन्होंने ना क्यों ठग कहा, मैनू इस गल का नहीं पता, लेकिन अपने पिंड च है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ठगी मारेगा तो मुझे बताया दूसरी दफा वो बंदा उस पर यकीन करेगा? मैं कहा भाई ठगा को बच के उन्हें होर पंजावां नूं दसना ए ठगा ए ठग ने इन्हां कोल बच के इन्हां ने मैनूं लुटिया जे, ऐसे ना, यानी वो आपसे दूर हो जाएगा क्योंकि आपने ठगी मारी है। तो जेड़ा बंदा सारी जिंदगी प्यो दादे तो ठगी मारी होता है, यहाँ इस हवाले से हमें यही पता चलता है ना, तुम अपने बाप दादा से मेरे कलाम से मुनहरफ रहे हो, उनको नहीं माना, मेरे आयन को नहीं माना, मेरे असूल को नहीं माना, उन्होंने नहीं माना, तुम भी नहीं मानते, तुमने बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा। ते जेड़ा बंदा खुदा नूं ठगी मारे ओदी कदी पूरी पई है? कदी खुशहाली आई है? वो बंदे नूं ठगी मार के तां जमीन झंझोड़दा रहिंदा भी तू बंदे ने इंज कीता, ते जेड़ा खुदा नूं ठगी मार लवे ओदी कदी पूरी पैदी है? नंबर एक जो दाई की नहीं देता वो खुदा को ठगी मारता है। मुर्गी हलाल करके खानी चाहिए कि हराम करके? हलाल करके पर पुरला के सब कुछ कट के पित्ता भी कट के, ऐसी है ना, तो फिर वो हलाल है। और अगर आप उसको ऐसे नहीं करते तो फिर वो क्या है? आपके लिए हराम है। अगर आप दाई की नहीं निकालते तो जो पैसा जो आमदनी आप खा रहे हैं वो हराम है। एक औरत ने कहा था हमारे पास एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, हम इसे खाएंगे और मर जाएंगे। और वो एक मुट्ठी आटा जो था वो खुदा के खादम का ही बड़ा हुआ था, क्योंकि पहले दौर में औरतें एक मुट्ठी आटा निकाल लिया करती थी खुदा के खादम के लिए हर रोज जब भी आटा गूंथती थी, 3 दफा गूंथती थी तो वो 3 मुट्ठियां निकाल कर लहदा रख लेती थी। उसने कहा अगर हम खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि मुल्क में काल पड़ा हुआ है। लेकिन खुदा के बंदा ने कहा नहीं तो मुझे खिला। जब उसने खिलाया, उसने दुआ की तो आटे का मटका लबालब भर गया, तेल की कुप्पी भी भर गई। आमीन। दिया करो ताकि तुम्हें भी। सो यहाँ पर पहली बात, जो शख्स दाई की नहीं देता वो खुदा को ठगी मारता है, वो ठग है। नंबर 2, वो नाफरमान है। किसका? खुदा का। क्योंकि ये हुक्म किसने दिया है? ये खुदा ने हुक्म दिया है। यहाँ पर मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ कि पास्टर ने हुक्म दिया या फलां पास्टर ने हुक्म दिया, बल्कि ये खुदा का हुक्म है कि पूरी दाई की ज़खीरा खाना में लेकर आओ। तो आप जानते हैं आदम और हवा ने एक नाफरमानी की थी और वो बाग़-ए-अदन से बाहर निकल गए थे। नंबर 3, वो शख्स जो दाई की नहीं देता वो सदा गरीब रहेगा, वो कभी अमीर नहीं हो सकता, उसके हालात कभी बदल नहीं सकते। क्योंकि वजह यह है, नंबर 1 वो खुदा को ठगी मारता है, नंबर 2 वो नाफरमान है, वो गुनाहगार है और गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है, इसलिए उसके लिए हमेशा आसमान बंद रहता है।